Assalamu alaikum. This is Economics with Sir Saad Abdul Kareem. First, let's understand some economic basis. Okay, what are the economics basics? Why we choose economics? What is the reason? Being a commerce student, because these three subjects, economics, business, accounts, will go all the way till end. So let's first understand what is economics. Economics is a social science that deals with the production, distribution, and consumption of goods and services. राइट, तीन कीवर्ड्स हैं जिसके हम फोकस करेंगे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Production means to produce goods and services, cars, laptops. Okay, whether we are going to produce, being an agriculture economy, we produce fruits, vegetables. We are very good exporter of mangoes, cotton. What is distribution? Distribution, we produce goods and then we distribute it. Distribution किस तरह होती है? Through the supply chain. कि पहले मैन्युफैक्चर होती है, फिर होलसेलर के पास जाती है, और इसके बाद जो है रिटेलर. रिटेलर कौन से हैं? आपके इम्तियाज, चेस, हाइपर स्टार, एंड देन फाइनली कंज्यूमर की बात आती है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो, this is what happening in the daily life when we speak in terms of commerce as compared to sciences, because every day we buy goods, groceries, whether bread, okay, eggs or vegetables or meat. So we go to the market, and every now and then we have new products coming into the market, new models of cars, new cell phones, and so, okay. So gradually we are going to first look into, okay, who are the users of economics, right? Who are the users of economics? So business. First user, let's talk about who business, how it is the user of the economics. Because when I said, let's go back to the previous slide. When we say economics is a social science that deals with the production, distribution, and consumption. Look, being a business, you have to produce goods and services, or you have to distribute it. So in business, you're supposed to know that what is the best use of my money. राइट, बीइंग इन्वेस्टर क्या है, बिजनेस क्या होता है, पैसा लगाता है अपना. जब पैसे लगाएगा तो वो ना मेक श्योर कि गेटिंग गुड प्रॉफिट्स, राइट. फॉर एग्जांपल, right now it's a covid, it's a corona thing, so I mean so many businesses are suffering, but there are some businesses that they are doing very well. तो लोग अपने अब बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? बेसिक्स नेसेसिटीज पे. लोग, राइट, टू मेक अंडरस्टैंडिंग बेटर, हम समझते हैं इसको करंट सिनेरियो में कि कौन से बिजनेस ऐसे थे जो कि लॉकडाउन में बंद नहीं हुए थे. Right from the beginning till end, we have grocery business like whether Hyperstar or Imtiaz, or with the social distancing, they have been closed down. Same is the case with the medical stores, right? और मे बी डीलिंग विद द मिल्क सप्लाई एंड ऑल. तो वो बिजनेस जो है, तो वो वांट मेक श्योर. अब इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, कि जैसे आपका कैपिटल है, राइट, आपका लैंड है, आपकी लेबर है, उसको किस तरह बेस्ट यूज करना है और कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है. फॉर एग्जांपल, आजकल क्या अपॉर्चुनिटी है? मास्क, सैनिटाइजर, आपके इट कुड बी सम अदर इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी ऑक्सीमीटर्स वगैरह. तो अब क्या है बिजनेस, लेकिन अब बिजनेसेस स्पेशली जो मल्टीनेशनल हैं, आपकी यूनिलीवर, पीएनजी, बड़े बड़े नेस्ले, अब उन्होंने बोला कि हमने जो है ज़्यादा जो है नेसेसिटीज में डील करना है, क्योंकि अभी भी कौन से बिजनेस सफ़र कर रहे हैं? बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स, एजुकेशन. ठीक है, अब इवन मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन क्या है कि आई एम स्टिल सफरिंग. अगर मेरा एजुकेशन से, आई एम स्टिल सफरिंग. ठीक है ना. इसी तरह मेरा रेस्टोरेंट है वो बंद है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन असल जो मेरा प्रॉफिट आता है, जैसे कुलाची है, बाबी टू नाइट है, राइट, तो वो उनका डाइन से आता है. सिमिलरली हम देखें शादी हॉल्स आर क्लोज एज वेल. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अब जो है इवन जो बिजनेस पुराने कर रहे थे उनकी डायमेंशंस भी चेंज हो गई हैं, और वो देख रहे हैं कि
किस में जो है ज़्यादा डील करना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। अब कंज्यूमर कौन होता है? कस्टमर और कंज्यूमर, देखो कस्टमर और कंज्यूमर ऑलमोस्ट द सेम है, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन होता है? अगर हम देखें हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ कैन ऑफ पेप्सी, ठीक है, और आप जो है क्या है कि उसको जो है यू आर गोइंग टू यूज इट, तो यू आर अ कंज्यूमर। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने ड्राइवर को भेजो और उससे बोलो कि भाई मेरे लिए पेप्सी का कैन ले आओ, तो वो तो नहीं पिएगा, वो तो आपके लिए लाएगा, तो ही इज द कस्टमर, ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम कर देता है, उसको यूज कर लेता है, ठीक है। फिर वो आपके पास लेकर आया और आपने उसको क्या है कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया? कस्टमर हो गया, और आप क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। बट एनीवेज वी यूज इट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो कंज्यूमर, देखो ये इकोनॉमिक्स की ज़्यादातर जो हम बात करेंगे और बिजनेस में भी, बिकॉज आई एम योर टीचर नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक्स, फॉर द बिजनेस एज वेल, और इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम जितनी भी ज़्यादा बात करेंगे, ये जो है हमारी जो रिवॉल्व करेंगे डिस्कशंस बिजनेस, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, लेकिन जो की आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो की जिनका इंटरेस्ट है, वो क्या है? बिजनेस और कंज्यूमर्स। क्यों? बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, और कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट चाहिए होती है, राइट। जैसे कि चाहे वो आपकी ग्रोसरी आइटम हो, चाहे वो आपकी ड्यूरेबल्स हो, लैपटॉप्स हो गए, सेलफोन्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, एंड सो ऑन, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, राइट, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक में आपको बता दूं कि देखो कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड इनकम है, और उसकी वॉन्ट्स और नीड्स से वो बहुत ही ज़्यादा, नीड्स तो चलो फिर भी लिमिटेड है, लेकिन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो ही वांट टू मेक श्योर कि मैं उस अपनी जो मेरी इनकम है या जो मेरा पैसा है, उसका बेस्ट यूज क्या करूं, राइट, व्हाट इज द बेस्ट यूज एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड इट, कि उससे मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल if you are thirsty, ठीक है, तो definitely you are going to buy a soft drink or maybe bottle of water, ठीक है। if you are not a wise consumer, तो maybe you end up buying a burger or McDonald's burger, वो ठीक है, or maybe any other meal without a soft drink, so it's not going to be wise. So you have to look into कि what's supposed to be the best, कि अब फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज जो है, और स्पेशली जो 3-4 महीने से टाइम था, पीपल they want to make sure they are going to spend mostly on the basics, ठीक है, चाहे वो आपकी ग्रोसरीज हो, चाहे वो बेसिक्स हो, ठीक है, एंड दे आर स्टॉपिंग स्पेंडिंग ऑन द लग्जरीज, ठीक है। एक तो बंद भी है, दूसरा businesses are really slow down, so people don't know about the future, they it's really uncertain, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम बात करते हैं बजट आ रहा है, ये आ रहा है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स ऑल अबाउट बजट, इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। हम देख रहे हैं कि रिसेशन, साइंस वाला भी रिसेशन की बात कर रहा होता है। रिसेशन क्या है? कि जो है गुड्स और सर्विसेज अब इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही, या जो लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, उनकी डिमांड कम हो गई, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारी बहुत ही जो है, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द डेली लाइफ, राइट। और गवर्नमेंट डू चार्ज टैक्स, राइट, तो उसका जो मेन जो अर्निंग है, दैट इज द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द बिजनेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। इसी तरह गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का क्या फ़ायदा होता है? उससे इकोनॉमी जो है वो स्टिमुलेट होती है, रन होती है, उससे लोगों को जॉब्स मिलती है, लोगों को जॉब्स मिलेगी तो उनके पास क्या होगा? उनके पास सैलरीज आएंगी, वेजेस आएंगे, पैसा आएगा, उनके पास पैसा आएगा तो क्या है कि वो लोग जो है वो जाके खर्च करेंगे, तो जब खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो ये पूरा साइकिल जो है हम आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे। फिर बात होती है कि इकोनॉमिक्स का सोसाइटी में क्या ताल्लुक है, तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो हमारा जो सोसाइटी का क्या ताल्लुक है कि देखो वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई बिजनेस जो है उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कंज्यूमर को गुड्स मिल रही हैं, तो सोसाइटी भी बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ इकोनॉमिस्ट वी आर नॉट कंसर्न, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो क्या है कि सोसाइटी का क्या कंसर्न है कि एक तो इन्वायरमेंट हेल्दी रहे, पोल्यूशन कम से कम हो, राइट, और दूसरा क्या है कि जो आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज हो। अब देखो
जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली आ रही हैं, चाहे वो गाड़ियाँ इको टेक हो, इको ड्राइव हो, ग्रीन एनवायरनमेंट हो, हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस वाला मेक श्योर कि भाई सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इवन दो कि भाई चलो वो कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, बट स्टिल दे आर ब्रीदिंग इन दिस वेरी वर्ल्ड, राइट? तो सोसाइटी जो है अब जो है कि नॉट ओनली दे आर गोइंग टू गेट द से बेटर एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो ये कि वो जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, वो हम देखेंगे कि भाई जैसे कि अगर क्योंकि जब पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट काइंड्स का होता है। वो एयर पोल्यूशन भी होता है कि फैक्ट्रीज में अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो कुछ सेल फोन्स हो, तो उससे क्या हो रहा है, चिमनी से स्मोक निकल रहा है, ठीक है, पोल्यूट कर रहा है। या आपका सी पोल्यूशन होता है, राइट? या फिर आपका नॉइस पोल्यूशन होता है एयरपोर्ट के पास, या फिर दूसरी बिजनेस एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स क्यों यूजफुल है? तो भाई स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी नहीं होती, बिल्कुल होती है। स्टूडेंट का टाइम होता है, बिल्कुल होती है। तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें जो है वो हम देखेंगे कि हाउ इट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट, बिकॉज देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट कमिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि यू हैव टू चूज, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ लिमिटेड पॉकेट मनी, you are going to have a limited time, how you are going to best utilize your time. This is what you are going to study in economics, how you are going to best spend your resources, whether it's about your education budget, whether it's about your pocket money, what is going to be the best use of it. तो हमने देखा कि ये हर वॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो बिजनेस हो, कंज्यूमर्स हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, स्टूडेंट हो, it's very important there, right? Now let's look into some of the basic concepts for economics, so it's going to be more clear to you. Scarce, scarce या scarcity, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन लिमिटेड अमाउंट। क्या मतलब है? इन लिमिटेड अमाउंट। वी नो अबाउट इट कि वी हैव मनी इन लिमिटेड अमाउंट। दरख्तों पे तो नहीं लगी होती। सेम इज द केस, हर चीज़ की लिमिट होती है। इवन के अगर हम देखें कि जो हम माइनिंग करते हैं तो ऑयल निकालते हैं तो समटाइम्स दे ड्राइड अप, वो भी सूख जाता है। चाहे तो रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ये कि आपके इन टर्म्स ऑफ लैंड हो, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ लेबर हो, या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। हर किसी के पास अनलिमिटेड कैपिटल तो नहीं होता, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। तो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है बिजनेस की रिसर्च की जाती है कि विच सपोज टू बी योर टारगेट मार्केट। आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, आपने किस बिजनेस में पैसा लगाना है जी। ओके, हमने किस तरह जो है बेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है कि वो रिसोर्सेज जो है ज़ाया नहीं हो। जैसे कि हम देखें कि दरख्तों को जो है वो वुड के लिए यूज़ किया जाता है, एज इनपुट फर्नीचर बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जो है अब हमारे पास बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है? एनी रिसोर्स विच आर नॉट स्केर्स आर कॉल्ड फ्री गुड्स। एग्जाम्पल एयर, ठीक है। याद रखो, whenever we speak in terms of economics, economics की बात होती है तो हम बात करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। किसके लिए? फॉर मनी। और नो, देयर इज नो बिजनेस दैट इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस फॉर द लॉसेस। हर कोई प्रॉफिट्स के लिए करेगा, राइट? ठीक है। तो अब हम बेसिक डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स भी आगे देखेंगे, भाई फ्री गुड्स क्या होती हैं या दूसरी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? तो नीड्स जाहिर है कि वो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर द थिंग्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ऑल पीपल हैव द सेम बेसिक नीड्स, ठीक है। तो इफ यू आर बाइंग अ रोटी, दैट इज योर नीड, बट इफ यू आर बाइंग से मे बी बर्गर किंग डील, सो दैट्स गोइंग टू बी द वांट कि भाई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है जिंगर बर्गर खा लूं KFC का, तो दैट्स गोइंग टू बी द वांट, राइट? तो wants may bring pleasure but they are not necessary for us to survive. Maybe a basic phone is going to be your need, लेकिन आपको iPhone 11 चाहिए तो definitely is going to be a want. तो wants तो आपको पता है कि अनलिमिटेड है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, कि हमने बैलेंस किस तरह करना है, राइट? कि हमने बैलेंस किस तरह करना है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ बिजनेसमैन, कि हमारे पास जो रिसोर्सेस, इवन गवर्नमेंट के पास कितने बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स होते हैं, लेकिन वो भी बजट बनाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे जो इस साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सीड ना कर जाएं, कि जो कि हमारा जो टारगेट है, तो दे सेट अप अ टारगेट, ठीक है। और टारगेट के बाद
they are going to continue with that. The resources needed to make goods and services are scarce compared with people wants. This is the economic problem. भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, कि भाई यू हैव अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इट, फिर यहाँ पे तो कोई गरीब ही नहीं होता ना. You know that there are like more than 50% people that they don't get their 2 basic meal. You are the richest person in the world कि अगर आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है इस टाइम और यू आर हेल्दी जी, ठीक है. दुनिया के 7 बिलियन पीपल में 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता. तो इसका मतलब है कि स्केर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ मनी नहीं है यहाँ पे. अगर हम देखें आगे बात करेंगे कि 5% लोगों, पूरी दुनिया के जो 5% लोग हैं उनके पास पैसा है और बाकी जो 95% उनके पास उससे कम पैसा है. तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही नहीं हुआ, ठीक है ना. Now people have unlimited wants, we know about it, and there is an endless list, ठीक है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होते जा रहे हैं, हमारी जो है अनलिमिटेड वांट्स बढ़ती जा रही हैं. पेंडेमिक में लोगों का सही मायने में पता लगा कि हाँ हम जो है बेकार में रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे थे, टाइम भी ज़ाया कर रहे थे, ठीक है. अब देखो ना, वी आर स्टिल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, काम तो हो रहा है. आई मीन मेरा जो कार का एक्सपेंस था मेरी, दैट इज़ लाइक 5 to 6 टाइम्स मोर, और अब मेरा जो है वो 5 to 6 टाइम्स लेस, ठीक है. क्या इकोनॉमी नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है. क्या मेरी क्लासेस नहीं हो रही हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है हमने कभी सोचा नहीं कि इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है. लोगों को अब पता लग रहा है कि बहुत सारे हम एक्सपेंसेस बेकार में करते थे, हमें कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी. वी यूज्ड टू हैव लाइक लेविश एक्सपेंसेस, राइट, ठीक है. एक ट्रिप काफ़ी होता था फॉर हॉलीडेज, वी यूज्ड टू हैव लाइक 2 ट्रिप्स. अब तो एक ट्रिप ही मुश्किल हो गया है कि आई मीन बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19. तो कोविड-19 ने, कोरोना ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the real cost of choosing one thing over another. The thing or opportunity we let it go is called the opportunity cost. एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि what is opportunity cost. John studies all night for his exam, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पेपर है, तुम सारी रात बोलते हो कि भाई मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है और मैं जो है आई जस्ट वांट टू गेन गुड मार्क्स क्योंकि मेरा पहले टेस्ट है, तो व्हाई नॉट आई स्टडी ऑल नाइट, ठीक है. तो यू स्टडी ऑल नाइट फॉर एग्जाम, अच्छा, तो नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू बी वेरी स्लीपी. जाहिर है कि रात में सोई नहीं. बीइंग ह्यूमन वी सपोज टू हैव अ गुड स्लीप, ठीक है. तो उसकी अपॉर्चुनिटी, अब क्या हुआ, पेपर मेस्टअप हो गया, खराब हो गया. तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अ गुड नाइट स्लीप. तो उससे हमें क्या समझ में आया? उससे हमें ये समझ में आया कि वॉट एवर वी लेट इट गो, जो हम हमारे हाथ से चला जाता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. कॉस्ट से ही मतलब है ना, ठीक है. अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग से 1000 रुपीज, तुम्हारे पास 1000 रुपये, ठीक है, एंड यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 2 थिंग्स. देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पहले तो ये समझ लो आया है कैसे. जैसे अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं, ठीक है. बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हारी पॉकेट मनी लिमिटेड है, ठीक है. इसी तरह बीइंग, आई मीन बीइंग से प्रोफेशनल, मेरी इनकम इज लिमिटेड, चाहे वो 1 लाख हो 10 लाख हो, लिमिट तो है ना कोई इसकी. इसी तरह हम देख लें कि जो बिजनेस में भी जो अर्निंग्स होती है लिमिटेड, सेम इज द केस गवर्नमेंट की भी लिमिटेड जो है वो बजट होता है, उसकी अर्निंग लिमिटेड. अब क्या है कि तुम्हारे पास 1000 है, यू हैव टू डिसाइड बिटवीन दिस एंड दैट, ठीक है. कि जाहिर है फॉर एग्जाम्पल you have to buy economics book and that's cost 1000 and same you say कि okay now it's been a while, पेंडेमिक की वजह से ये जो सारे आउटलेट वगैरह बंद है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं, ऐसा है कि जो है बर्गर किंग का मील ले लेता हूँ, ठीक है जी. अब यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द बुक और अ मील, ठीक है. तुम बोलते यार पहली क्लास है मिस हो जाएगी. बीइंग अ वाइस स्टूडेंट, बीइंग अ वाइस पर्सन एज वेल, तुमने बोला कि चलो मील तो फिर मैं ले लूंगा, लेट्स हैव बाय अ बुक, ठीक है. तो इफ यू बाय अ बुक, सो तुमने क्या छोड़ी?
जो अपॉर्चुनिटी थी, you could have enjoyed that Burger King meal, so you let it go that Burger King meal, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसका रिवर्स कर देते हैं। मैं बोला क्लास क्या है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बाद में ले लेंगे बुक, ठीक है, मील एंजॉय करते हैं, जिंदगी चलती रहती है, एंड लाइफ स्टिल गोज ऑन, क्या है नेक्स्ट में ले लेंगे। यू एंजॉय, यू ऑर्डर इट, ठीक है, यू ऑर्डर इट थ्रू फूड पांडा, ठीक है, एंड you choose to have a Burger King meal, ठीक है, what you let it go, you let it go the economics books। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई आपकी, इकोनॉमिक्स बुक्स। तो इसी तरह बिजनेस में भी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है कि भाई ऐसा है कि मुझे जो है अभी एक मशीन भी लेनी है, और मुझे जो है वो डिलीवरी के लिए ट्रक भी लेना है, क्योंकि मेरा जो ट्रक है वो काफ़ी टाइम पुराना हो गया है। तो लेकिन अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं बीइंग अ बिजनेसमैन। अब मैं क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, या तो मैं वो मशीन ले सकता हूँ या ट्रक। अगर मैं वो मशीन ले लूंगा तो ट्रक क्या हो जाएगा, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। गवर्नमेंट को जाहिर है बहुत सारे एक्सपेंस करने होते हैं, तो उससे रोड भी बनानी होती है। आजकल जो बेसिक नीड है वो हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, ठीक है। पहले ईद पे जो है वो हम लोग निकल गए थे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, वो केसेस बहुत बढ़ गए। अब जो है लोग मंडी चले जाएंगे, ठीक है, और वो ईद पे जो है भी अगर हम रिस्ट्रेन नहीं करते अपने आप को, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल की भी। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस है। चॉइस ए क्या है कि हॉस्पिटल और बनाए मोर बेड्स के साथ, दूसरा ये कि रोड बनाए, ठीक है। अगर इसके पास 1 से 10 मिलियन का बजट है, जो कि 1 करोड़, ठीक है, छोटा हॉस्पिटल बनेगा या रोड बनेगी। इफ गवर्नमेंट चूज टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, तो रोड विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर वाइस गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या है, चलो भाई ये तो चलता रहेगा, पता नहीं कब तक, 2 साल 3 साल, रोड बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ठीक है, अभी बारिशें भी आने वाली है, तो ड्रेनिंग सिस्टम भी सही करना है, तो लेट्स बिल्ड अ रोड। तो देन हॉस्पिटल इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो कोविड की बात कर लें, तो जाहिर है कि अगर हम जो है मंडी चले जाते हैं, हम जो है जानवर वगैरह, चलो भाई जाएं, बहुत से लोगों को शौक होता है, ठीक है, कि चलो भाई सपा वो लेट्स एंजॉय इट देयर एंड ऑल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी कि नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, लोग और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने गलत डिसीजन लिया होगा टू गो टू द साइंसेस। अब जितना टाइम भी मिस हो रहा होगा, तो वो क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि शुरू का टाइम बड़ा की टाइम होता है फाउंडेशन ले करने का। ये इसी तरह जैसे बिल्डिंग होती है, पहले आप फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद फ्लोर्स खड़े करते हैं, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी, उतने ही ज्यादा फ्लोर्स जो है वो आप क्या है बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग होंगे। अब फाउंडेशन वीक होगी तो क्या होगा कि आपकी जो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एंड यू कैन नॉट हैव अ लॉन्ग स्टोरी बिल्डिंग, राइट। दिस इज हाउ थिंग गोज ऑन। अदर कॉन्सेप्ट्स जो हम समझते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? द स्केर्स रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई और वांट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं हो जाती कि भाई हमने सोचा और गुड्स बन गई। उसके लिए तो आपको कुछ फैक्टर, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि दूसरा देखें हम यूज़ करें इसके इनपुट्स। तो हम वन बाय वन अब इसको और जो हम इसमें डीप जा रहे हैं, तो बहुत ही ग्रेजुअली स्लोली हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, तो inshallah it will be all clear to you. So these are the inputs into a production process from which an output of goods and services emerges. Next slide में ये और चीज clear हो जाएगी कि जो factors of production है, there are 4 factors of production. Number 1, land. Second is labor. Third is capital. And the fourth one is enterprise. So land, labor, capital, and enterprise. Let's understand one by one. What do we mean by land? Now, land comprises of natural resources, example cotton, oil, iron ore, wood, right? Being agriculture economy, हमारी देखो इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी भी हो सकती है, जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एडवांस कंट्रीज हैं तो वो लाइक कोरिया एंड ऑल, तो वो दे आर डीलिंग विद द से दे आर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स, ठीक है,
Hyundai Devo cars, ठीक है, तो they are ahead even though they got independence after us. हमने 47 में की, उन्होंने 59, लेकिन स्टिल उन्होंने बड़ा एडवांस किया और look where they stand. हम लोग अभी सिर्फ यही, अब इवन वी आर नॉट रियली सेल्फ सफिशिएंट, अभी भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वीट, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड लुक वेयर दे आर. सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया तो वो कितना आगे चले गए. और आगे की बात करें तो आजकल टाइम है सर्विसेज का, ठीक है, चाहे वो टूरिज्म हो, अभी जनरल बात कर रहा हूँ कोविड की नहीं, ठीक है, आपकी जो है ई कॉमर्स का हो, जैसे कि आपका दराज है या अली बाबा है, राइट. तो अभी तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट. दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन एंड ऑल. तो लेट्स अंडरस्टैंड. तो नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड से हमने क्या समझा कि जो कि रॉ मटेरियल जो हमें इनपुट चाहिए होता है, ठीक है. तो कॉटन कहाँ से मिलेगा? फार्म से मिलेगा, बाय हैविंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है. इसी तरह फिर वो बाद में बात करते हैं कि वो किस तरह हम उसको जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, क्योंकि कॉटन से आपका कपड़ा बनता है, कपड़े से क्या होती है, वो लेमत या आइडियाज वो शर्ट बनाएगा, ये लीवाइस शर्ट बनाएगा, फिर उसकी क्या एक्टिविटी होगी, देन उसकी जब हमने बात की वो डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग होगी, वो कहाँ होगी, या तो लिवाइस आउटपुट पे होगी या आइडियाज पे होगी, ठीक है. इसी तरह अगर हम देखें कि जो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स से क्या है, पहले फ्रूट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, फिर वो फ्रूट्स जो हैं मिचल्स के फार्म पे जाएंगे, उससे जैम और जेली और केचप बनेगा, ऐसे ही है ना. फिर वो क्या होगा कि फिर वो जो है आउटलेट्स पे जाएगा, इम्तियाज के, आपके हाइपर स्टार पे, चेस पे, ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द डेली लाइफ. हम जो सारी टाइम पे जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, दिस इज व्हाई इट्स मच इजी टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू द साइंसेस कि भाई दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द डेली लाइफ. तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन हो गया हमारा लैंड. अच्छा, लैंड में ये भी आ जाता है कि लैंड फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू बिजनेस ऑन, जैसे अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो ऐसे हवा में तो नहीं खड़ी हो जाएगी, वी नीड लैंड, राइट. ठीक है, तो लैंड के दो वेज हैं, इधर भी ओन इट, हम बाय कर सकते हैं, या हम रेंट पे लेंगे. किस पे लेंगे हम? रेंट पे, ठीक है. ऑफिस का भी है, या तो मेरा अपना ऑफिस होगा या मेरा अपना क्या होगा, से आई एम गोइंग टू से, और इधर आई एम गोइंग टू रेंट इट आउट. सिमिलरली अगर स्कूल है, इधर आई ओन दैट प्लेस, या फिर वो मुझे रेंट पे बिल्डिंग लेनी होगी. दूसरी क्या कैटेगरी आती है, जो कि मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी. प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. बार बार रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात जहन में बैठ जाए. तो लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स, इसको समझ लेते हैं. बहुत आमतौर पे हम लेबर समझते हैं लेबर दिहाड़ी वाले. इट्स नॉट गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट. लेबर हैज अ डीप कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, mental and physical efforts. When we speak in terms of physical efforts, देखो फिजिकल एफर्ट्स कौन कर रहा होता है, कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है. और इसी तरह जो लेबर है वो रोड वगैरह बना रही होती है, जो कि आपकी लेबर है, बिल्कुल सही है, ठीक है. तो ये भी लेबर है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे जो आपके लेबर